Hello children, I am very happy that you have joined my English session. What a beautiful day it is, isn't it? Today I am going to tell you an interesting story and the message conveyed by it. Hope you are ready with your notebooks. Okay, let us begin the session. Today the learning outcome will be, children, you will be able to read the story with proper understanding. Do you remember the names of animals? Yes, we can list them. Lion, tiger, elephant, cow, horse, dog, donkey. Children, you know, though animals, those live in forest are called wild animals, and some animals are also found nearby our houses. तो बच्चों जो हमारे घरों के आसपास मिलते हैं हम उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स, द एनिमल्स हु हेल्प अस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. दे फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस. दे आर वेरी फ्रेंडली एक्चुअली. दे आर टेम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर kept by them. Students, you are very well knowing the names of these animals: rat, cat, dog, sheep, donkey, horse. They are kept by human beings. Some animals are trained to perform different activities. Okay students, let us recall the importance of domestic animals. Ox. Ox is used for plowing the fields. Horse also lives around us. That is used for riding, for carrying carts, for carrying loads, etc. Next, cow and goat. Cow, goat and buffalo. You know them? They are called as milk animals because they provide us milk. Dog. Dog guards our house. Do you know how they do it? Dogs make us alert when some stranger gets in our house. They start barking on them. That makes us alert. Donkey. Donkey is used for carrying loads. Camel is used for meat, milk and leather. They are called the ship of desert and they are also used for transportation purposes. You know, some animals domesticate cats also as their pets. Sheep. We can't forget sheep because sheep gives us wool. Sheep's skin is shaved off to get the wool and we make woolen clothes with the wool, which is helpful in our winter season. Next topic is, we'll go to the domestic animals crossword. We have been given few hints here, few of the pictures we have been given. So we have to identify the name of 10 domestic animals first. Then we have to identify them in the crossword puzzle below. Like, first of all, one of them has been done for you. C-A-T, cat. Right? Next, how we find a word in a crossword. हमें कैसे एक वर्ड को ढूंढना है? सबसे पहले हम डोमेस्टिक एनिमल्स के अपने पास नाम की लिस्टिंग करेंगे. फिर हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका फर्स्ट अल्फाबेट चेक करेंगे. जैसे गॉट जो है हमारी जी से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे? गॉट में जी देखेंगे. उसके बाद हम उसका नेक्स्ट अल्फाबेट लेटर देखेंगे ओ. फिर उसके बाद हम देखेंगे उसका लेटर ए. फिर हम उसका टी देखेंगे. तो जहां हमारी एक स्ट्रेट लाइन में हमें वर्ड्स मिल जाएंगे, वो हमारा क्रॉसवर्ड में वो प्रॉपरली हमारा एक वर्ड होगा जो एनिमल को रिप्रेजेंट करेगा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा हॉर्स. देखिए यहाँ पे HORSE, हॉर्स. H यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे H जो है उसके आगे हमारे पास O नहीं है लेटर, तो इसलिए हमने यहाँ हॉर्स को
सेलेक्ट करके हमने अपना क्रॉसवर्ड में एक वर्ड बनाया है. नेक्स्ट इज काउ, सी. हमने सी ढूंढा, सी बहुत सारी जगहों पर है, हमने लेकिन यहाँ पर ही काउ, सी और डब्ल्यू की स्पेलिंग हमारी यहाँ हो रही है, इसलिए हमने काउ बनाया. नेक्स्ट है कैमल, कैमल CAMEL, ऐसे ही DOG SHEEP, शीप. नेक्स्ट है डोंकी, डोंकी DONKEY. हमने डोंकी की स्पेलिंग को सेलेक्ट किया, डी हमारे पास बहुत सारी जगहों पर है लेकिन हमने यहीं पर सेलेक्ट करके उसको फाइनलाइज किया. फिर है हमारा ऑक्स. अब ये हमारे कुल जमा 9 हमारे एनिमल्स के नेम आ चुके हैं. एक हमारा यहाँ पे है GOAT, गॉट. ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं. काउ, डॉग, गार्ड्स आर होम, donkey carries load, horse is used for riding and ox is used for plowing. So students, आपको समझ आ रहा होगा कि domestic animals are very useful for us. So we should not hurt them. We should take proper care of them. We should give proper food to them. Next slide is the poem. You know, animals are kept on the farms also. So when they are in the farm, maybe they must be talking to each other also. So we will now find out the sounds of the animals. Are you ready for the poem? Okay, get ready. The cows on the farm go moo moo moo, moo moo moo, all day long. The cows on the farm go moo moo moo, moo moo moo, all day long. The dogs on the farm go woof woof woof, woof woof woof, all day long. The dogs on the farm go woof woof woof, all day long. The cats on the farm go meow meow meow, meow meow meow, all day long. The cats on the farm go meow meow meow, all day long. The goats on the farm go meh meh meh, meh meh meh, all day long. The goats on the farm go meh meh meh, meh meh meh, all day long. Children, did you like it? हमने अभी डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा, तो अब आप समझ गए होंगे हमारी स्टोरी किसके अराउंड है, डोमेस्टिक एनिमल्स के अराउंड है. आप जानते हैं हमारी स्टोरी का नाम है द डंकी एंड द डॉग. ये आपकी रेनबो इंग्लिश कक्षा 6 की किताब का लेसन नंबर 4 है. अब हम क्या करेंगे, हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन करेंगे. पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए यू हैव टू ओपन योर बुक्स, then we'll do the picture description and we will try to guess by observation method ki what are the characters and what is actually the story is all about. Okay, we'll start with the questions. Question will be all the 3 questions we will follow. Who is in the picture? Who are in the picture? There are 2 characters. One is washerman and one is donkey. Where are they? They are near the river. What are they doing? Washerman is taking the donkey along with him with the load of clothes on his back towards the river. Next, second picture in your lesson is this one. Now, who are in the picture? Now, 3 characters are there. One is dog, one is donkey and one is washerman. What they are doing? Where are they? Actually, donkey is in shed and the dog and the master, that means washerman, they are inside the house. What are they doing? Donkey is peeping out from the shed and watching what his master is doing with the pet dog, and washerman is patting his pet dog very cheerfully.
again the third picture, who are in the picture? Again here are donkey and the washerman. Two characters are here. Where are they? They are inside the house. What are they doing? Donkey is trying to jump onto his master and trying to lick him. And the master, washerman, he is feeling scared. So बच्चों, अब now you must have got the idea कि हमारी story किन के around है and what is the theme actually about it. Let us do the reading. We will more focus on pronunciation of the words, the donkey and the dog. A washerman had a donkey and a dog. Every morning he used to go to the river to wash clothes. The donkey carried load of clothes. He lived in a shed outside the master's house, and the dog used to stay inside the house whole day long. In the evening, the dog used to feel happy to see his master. He used to lick his master and jump on him. The master used to lift the dog in his arms and take him inside the house. Seeing this, the donkey also wanted to live in the house. Seeing this, maybe if I also jump on him like the dog, he will surely lift me too in his arms and carry me inside the house, the donkey thought. The next evening, the donkey went inside the house. He jumped on his master and began to lick him. The master did not lift the donkey. He took him to the shed. Patting the donkey, the master said to him, "You are not like the dog. You are much bigger, so you cannot come inside the house." The master added, "You are also heavy, so you must not jump on me. I can lift the dog, but I cannot lift you. But I love you as much as I love the dog. You must understand that you are different." तो मैसेज क्या है स्टोरी का? We should not try to copy others as each one of us is unique. हमें कॉपी नहीं करना चाहिए दूसरों को, क्योंकि हम में से सब ही विलक्षण हैं. अब हम इस स्टोरी को हिंदी में रीड आउट करते हैं बच्चों. एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था. हर सुबह वह कपड़े धोने नदी पर जाता था. गधा कपड़ों का भार उठाता था और गधा मालिक के घर के बाहर शेड में रहता था और कुत्ता सारा दिन मालिक के घर में रहता था. शाम को मालिक के वापस आने पर कुत्ता मालिक को देखकर खुश होता था. वह अपने मालिक पर कूदता और उसे चाटा करता था. मालिक भी कुत्ते को अपनी बाहों में लेता और अंदर ले जाता था. यह देखकर गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था. गधे ने सोचा, शायद मुझे भी कुत्ते की तरह अपने मालिक पर कूदना चाहिए और वह जरूर मुझे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जाएगा. अगली शाम को गधा घर के अंदर चला गया. वह अपने मालिक पर कूदा और उसे चाटने लगा. उसके मालिक ने गधे को नहीं उठाया. वह उसको शेड में ले गया. गधे को थपथपाते हुए मालिक ने उससे कहा, "तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, तुम मुझसे बड़े हो, इसलिए तुम घर में नहीं आ सकते." मालिक ने और आगे कहा, "तुम भारी हो, इसलिए तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए. मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं उठा सकता. लेकिन मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते को करता हूँ. तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अलग हो. हमें दूसरों की नकल का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम में से हर कोई विलक्षण है." तो बच्चों, इट इज गुड टू बी योरसेल्फ. देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीवन. एवरीवन इज इन द प्लेस. हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए. हम सबका अपना एक विशेष स्थान होता है. तो हैव यू एवर कॉपीड एनीबॉडी चिल्ड्रन? डिड यू? ओह, how was the experience? Not so good. Okay, let us move on to the next slide.
Children, you will first practice speaking them, then only you will note them. Word meanings: washerman, कपड़े धोने वाला. Load of clothes, LOAD, load of clothes, कपड़ों का ढेर. Wanted, चाहना. Further, स्पेलिंग देखेंगे FURTHER, further, आगे. Understand, समझना. Shed, छप्पर. Load, भार. Licked, 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 चाटा. Lifted, उठाया. Patted, थपथपाया. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारी स्लाइड. नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, अल्फाबेट. व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ सिंबल्स और लेटर्स. दे आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर. वो फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं, यानी ए के बाद बी आएगा और बी के बाद सी आता है. तो अल्फाबेट जो है वो 26 लेटर्स के हैं हमारे इंग्लिश में. और आप ये जानते हैं ए इज नॉट एन अल्फाबेट, ए इज ए लेटर. क्लियर बच्चों? क्योंकि अल्फाबेट एक सेट है पूरे 26 लेटर्स का. ये स्पीच साउंड्स हैं जो कि एक लैंग्वेज के बेसिक सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो वी हैव वॉवेल्स. वी हैव 5 वॉवेल्स, A, E, I, O, U. So children, we have 5 vowels: A, E, I, O and U. I have made finger puppets for you. Say hi to vowels. Hi vowels. Okay, these are 5 vowels. Why they are called vowels? Because इनको हम स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें इन्हें बोलने के लिए गले की सहायता लगती है. हम गले की सहायता से इन्हें बोलते हैं. बाकी हमारे जितने भी अल्फाबेट्स हैं, 5 ये हैं, तो हमारे बाकी 21 जो हैं वो कंसोनेंट्स हैं. तो जैसे B, C, D, F, G, H एंड देन लास्ट X, Y, Z. तो बच्चों, मैं आपको वॉवेल्स बोलकर दिखाती हूँ. आपको महसूस होगा कि हम कैसे इनको, क्यों इन्हें हम स्वर कहते हैं या वॉवेल्स कहते हैं. थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, पर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ. देखिए, A, E, I, O, U. अब मैं आपको B और C और D बोल के दिखाती हूँ. B, C, D. B, C और D में मुझे लिप्स और टंग की जरूरत पड़ी थी. तो बच्चों, अब आप ये जानते हैं कि हमारे पास 5 वॉवेल्स हैं और 21 हमारे 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हैं. अब हमारी वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग वॉवेल्स. अब जैसे मकान को बनाने के लिए दीवारों की और दीवारों को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है बच्चों, ऐसे ही लैंग्वेज को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? सेंटेंसेस की. सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें वर्ड्स की, और वर्ड्स को बनाने के लिए हमें वॉवेल्स और कंसोनेंट्स की, यानी लेटर्स की, जो हमारे 26 लेटर्स हैं. अब हम आपको वर्ड फॉर्मेशन सिखाएंगे कि कैसे वर्ड फॉर्मेशन की जाती है. देखिए, अब हम वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग वॉवेल से कर रहे हैं. C फॉर हमारा स्टैंड फॉर कंसोनेंट, V फॉर वॉवेल एंड C फॉर अगेन कंसोनेंट. तो हमारा ये वर्ड बन गया. हमने पहला लेटर लिया P कंसोनेंट के हिसाब से, तो P, फिर E वॉवेल, फिर हमने फिर कंसोनेंट लिया, तो हमारा बन गया पेन, फिर टिन, फिर हैट. ऐसे ही V, C, C वर्ड्स में क्या है? पहले हम वॉवेल लेंगे. देखिए, हमने पहले वॉवेल लिया, A इधर लिया है, इधर I लिया है, इधर E लिया है. हमारे 5 वॉवेल्स में से ही हम ले रहे हैं बार बार. फिर हमारे V, C वर्ड्स हैं. इसमें हमारा पहले हमने 2 वॉवेल्स लिए हैं, फिर कंसोनेंट लिया है, फिर 2 वॉवेल्स लिए हैं, कंसोनेंट लिया है, फिर वॉवेल्स लिए हैं और फिर कंसोनेंट आया. तो बन गया ईयर, एम एंड आर. तो सेम हमारा यहाँ है V, C, V, यानी कि E, Y, E. E हमारा फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, एंड फिर ये हमारा कॉन्सोनेंट आया Y, और फिर हमारा फिर से वॉवेल. तो I, I's एंड R. नेक्स्ट वी विल नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स. अब हमारे ये 5 वॉवेल्स हैं, हम इसी को यहाँ पे भरेंगे. किंग ऑफ फ्रूट्स. हिंट आपको दिए गए हैं, आपको वॉवेल भरना है. तो यहाँ हमारे 2 वॉवेल्स आएंगे,
तो हमारा किंग ऑफ फ्रूट्स कौन है? मैंगो। तो हमारा आया MANGO, मैंगो। यहां हिंट है, वी सिट ऑन इट, हम किस पे बैठते हैं? चेयर पे। सो AI, चेयर। नाउ दिस एनिमल हैज अ हेम्प, व्हाट इज दैट? कैमल। ए और ई हमारे फिर से इसमें वॉवेल्स लग गए। नाउ आवर बुक्स आर मेड ऑफ इट, किसकी बुक्स? हमारी बुक्स किससे बनती हैं? पेपर से। तो हम यहाँ पे हमने ए और ई वॉवेल लगा दिए, यहां हमने फिर से डबल ई लगा दिया। हमारा अपोजिट ऑफ सॉर, खट्टे का उल्टा क्या होता है? स्वीट। तो हमारे यहाँ पे डबल ई से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। लेट अस डू नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वोवेल्स। अब यहाँ पे हमने कुछ आपके लेसन के लेटर्स वर्ड्स लिए हैं। तो अब देखिए, पहला हमने लिया है LOAD। हम इन 5 वोवेल्स में से कोई भी हम वोवेल डालेंगे, ठीक है? तो लेकिन हमारा पर्पस क्या है कि हमारे वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपरली उनका कोई सेंस होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है शेड, हमने SHED डाला इसमें। तो ई डालने से क्या हुआ? हमारा एक पूरा प्रॉपर वर्ड बन गया। ये आपके हमारे डंकी जो है वो शेड में रहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा L-CK। अब वॉवेल्स फिर से हम कोई भरेंगे, तो हमने क्या भरा? हमने आई भरा, तो हमारा बन गया लिक। लिक माने चाटना। आप यहाँ पे ओ भी भर सकते हैं, तो लॉक। लॉक माने ताला बन सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, हमने आई भरा है लिफ्ट, क्योंकि हमारे चैप्टर में वो लिफ्ट करता है उसको, डॉग को, मास्टर। यहाँ पे हम लेफ्ट भी लिख सकते हैं, लेफ्ट LEFT, दाएं बाएं। फिर है हमारा लव, हम लव भी बना सकते हैं और हम लिव भी बना सकते हैं, LIVE बना सकते हैं। फिर हमारा है यूज्ड, ED बना दिया हमने, ई लगा दिया। फिर कम, COME लगा दिया, हम CAME भी लगा सकते हैं, केम भी लगा सकते हैं। ऐसे ही हमारा TAKE हमने लगाया, तो हमारा एक प्रॉपर वर्ड कंप्लीट हो गया। तो हमारा अभी क्या था? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वॉवेल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज आर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन is the word that connect noun or pronoun with the rest of the sentence. तो हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं in, on, off, over, above, from, among. There are too many prepositions. They are the examples of prepositions. Preposition का अर्थ है पहले रखा गया। प्रीपोजिशन जो होती है वो हमारी बताती है कि हमारा नाउन का संबंध बाकी शब्दों के साथ कैसे है। लेट अस डू, हम आज उन्हीं प्रपोजिशंस को पढ़ेंगे जो हमारी व्यवहारिक तौर पे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। पहली प्रपोजिशन है इन। जैसे आप देख रहे हैं एक बॉक्स के अंदर ग्रीन बॉल है, तो बॉक्स, द बॉल इज इन द बॉक्स। इन का मतलब होता है में। अब मैंने ये कहा दिस इज द वाटर इज इन द बॉटल, ड्रिंक इट, तो ठीक है। अगर मैंने इसे बोला द वाटर इज ऑन द बॉटल, ऑन माने ऊपर, ड्रिंक इट, तो सामने वाले का रिएक्शन आपको बताएगा कि आप गलत कह रहे हैं। नेक्स्ट, इसी में हमारा जो है इंग्लिश, इंग्लिश में बात करना। हमने लिखा टॉक, टॉक बात करना, टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करना। इनको देखिए इंग्लिश से पहले रखा गया है, हमने अभी बताया पहले रखा जाता है इनको, और जो इन है वो कनेक्ट करता है टॉक और इंग्लिश को। अब पेंसिल इज इन द बॉक्स, क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है हमारी ऑन। कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो हम उसे ऑन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो फिजिकली, इफ इट इज इन फिजिकली कॉन्टेक्ट विद दैट, तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन वहां पे फिजिकली चीजें कांटेक्ट में नहीं होती। जैसे द ट्यूबलाइट इज ओवर माई हेड, क्लियर बच्चों? तो ऑन का हमारा जैसे है, जैसे कैट इज सिटिंग ऑन द बेंच। फिर है हमारा द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है हमारा अंडर। अंडर जो है वो बताता है कि बॉक्स के नीचे है बॉल, ठीक है? ऐसे ही
द डॉग इज अंडर द टेबल. अंडर इज टेलिंग द पोजिशन ऑफ द डॉग. द बॉल इज अंडर द टेबल. क्लियर. तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टू. नेक्स्ट टू का मतलब होता है साइड बाय साइड. लाइक माई हाउस इज नेक्स्ट टू द टेम्पल. बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इन फ्रंट ऑफ का आता है आगे. जैसे चिल्ड्रन आर हाइडिंग बिहाइंड द डोर. ठीक है. यहां पर हम इसको दो तरह से यूज करेंगे. सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स और द क्लाउड्स आर इन फ्रंट ऑफ द सन. क्लाउड जो है वो सन के आगे हैं. नेक्स्ट है आपका बिटवीन. बिटवीन का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब टू थिंग्स आर क्लियरली सेपरेटेड और कोई चीज उनके बीच में है. ऐसे ही आगे हम करेंगे अमंग. अमंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें से हम किसी एक चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. जैसे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे. एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. फ्रॉम का मतलब किसी से चीज मिलना, गिफ्ट मिलना. अबव भी ऊपर होता है. ऑन ऊपर हमने बता दिया आपको. ओवर बता दिया मैंने. इनटू में क्या है, जब कोई एक चीज किसी एक चीज से दूसरी चीज में चली जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. जैसे फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, तो हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज में. द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स. राइट स्टूडेंट्स. रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हर फ्रेंड्स. उसने अपने सारे फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट की स्वीट्स. द मैन जम्प्ड इनटू द रिवर. आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड. कीप द नोटबुक्स ऑन द टेबल. हिज फ्लैट वॉज अबव द शॉप. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम करेंगे पिक आउट प्रेपोजिशन. एवरी मॉर्निंग ही यूज टू. अब यहाँ पे हमारी एक नई प्रपोजिशन आएगी जिसके बारे में हमने बात नहीं की है, वो रह गई है हमारी टू. टू का जो प्रपोजिशन है वो हमारी डायरेक्शन बताती है. जैसे गो टू द लेफ्ट ऑफ द रोड. राइट. तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर भी टू हमेशा डायरेक्शन के लिए. एवरी मॉर्निंग ही यूज कहा जाता था, टू गो टू द रिवर. वो रिवर की डायरेक्शन में जाता था, तो हमने टू लगाया. टू वॉश क्लोथ्स. The donkey carried load of clothes. He lived in a shed. Shed में रहता था. He jumped on him. He jumped on him. तो स्टूडेंट्स ये हुई आपकी प्रेपोजिशन. तो प्रेपोजिशन जो जनरली यूज होती है हमने उनके बारे में डिस्कस किया है. आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेपोजिशन बहुत छोटे वर्ड्स होते हैं, तो इनको हमने आपको बता दिया है. अब हम करेंगे नेक्स्ट. हमारी स्लाइड है मेकिंग ऑफ फिंगर पपेट. बच्चों अब इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 5 by 5 इंच की आपको एक स्क्वायर शीट लेनी है. उसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है कि जैसे दो ट्रायंगल्स में आ जाएं, एक के ऊपर एक ट्रायंगल्स लाई कर रहे हो. उसको आपने दोनों तरफ से उसके ईयर को इस तरह से फोल्ड कर देना है. इसको आपने सेंटर में ऐसे मिलाना है. एक सेंटर में आपके पास वो बन जाएगा, पॉइंट आ जाएगा. अब आप यहाँ पे इसके दोनों तरफ आप इसकी आईज ड्रॉ करेंगे बच्चों. क्लियर. यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसको फिल करेंगे. यहाँ इसकी आप इस तरह से डॉग की आप मुस्टैचेस बनाएंगे. अब देखिए आप यहाँ पे गुगली आईज भी लगा सकते हैं. देखिए मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ. हमने यहाँ गुगली आईज लगाई हैं. अब हमने इसको फिंगर पपेट बनानी है, तो हमें ये यहाँ पे हमें ऐसे इसको लगाने के लिए भी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 4/2 इंचेस का लिया. आप अपनी फिंगर का साइज भी देख सकते हैं. फिर हम यहाँ पे एक साइड में फेविकोल लगा के इसे चिपका देंगे, जैसे मैंने ये आपके लिए चिपका के रखा है. क्लियर बच्चों. अब देखिए फिर उस दोनों को हम दोनों को एक दूसरे पे इस तरह चिपका देंगे. आपकी फिंगर पपेट रेडी है. क्लियर बच्चों. तो आज हमने फिंगर पपेट बनानी सीखी. ओके स्टूडेंट्स, अब हम होमवर्क की स्लाइड पर पहुंच चुके हैं. आपको क्या होमवर्क करना है, यू हैव टू डिस्क्राइब द पिक्चर शोन हियर. यहाँ आपको पिक्चर दिखाई है, आपको उसको आपको डिस्क्राइब करना है. मैंने आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन सिखाया है. नेक्स्ट इज मेक अनदर स्टोरी ऑन एनी ऑफ द कैरेक्टर्स. आपके जो तीनों कैरेक्टर्स हैं उसमें से आप किसी पर भी एक स्टोरी बनाएंगे. मेक फिंगर पपेट ऑफ डॉग. मैंने आपको फिंगर पपेट ऑफ डॉग बताई है, आप वो बना सकते हैं.
इसके बाद है हमारा कंक्लूजन। हमने क्या क्या सीखा? स्टोरी एंड इट्स मैसेज, हमने स्टोरी पढ़ी, समझी और उसका मैसेज समझा। प्रपोजिशन पढ़े। इसके बाद हमने वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स को हमने समझा और इसको आपको याद किया। तो इसके बाद लास्ट में हमारा नॉट लीस्ट मेकिंग ऑफ फिंगर पपेट, हमने फिंगर पपेट को बनाया। तो बच्चों अब आपको करना क्या है? आपको होमवर्क करना है। सो अब हमारे यहाँ पे ये वाला सेशन यहीं खत्म होता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and do your homework.